students, welcome back to the JP classes. Myself Julie Sharma is back again with the lecture 2 of the chapter 2, that is sexual reproduction in flowering plants. As you all know that in the lecture 1 I have covered the topic, the introduction part and the microsporogenesis. So before starting my second lecture, I would like to bring your kind attention to the important questions of the lectures, first lecture that I have covered. These questions are very important from the board exam pattern. So I'm going to explain you the basic concept behind these and how to answer them in the board exams. Now first question is, draw the diagram of a flower with the different floral whorls. In this question basically you have to draw a bisexual flower containing all the floral whorls, and you have to also mention the thalamus and the receptacle. Floral whorls, each and every segment should be clear and it should be marked properly. Now the second question is, mention the important functions of the floral members. Here you have to explain what is the role of calyx, what is the role of corolla, what is the role of androecium and gynoecium. These will help you to explain how each and every part of a flower is essential for the reproduction. Now the next question is, explain the structure of microsporangium. What is microsporangium? You all know that anther is a bilobed structure which comprises of the total 4 microsporangia. These microsporangia on further development give rise to the pollen sac which bears the developing pollen grains. Okay. When you draw the structure of microsporangium, you have to clearly mark the 4 layers surrounding the pollen grains. Okay. Now the next one, the role of tapetum. What is tapetum? It is the innermost layer of the microsporangia which is nutritive in function. Nutritive means they provide nourishment to the developing pollen grains. That's why they are able to germinate and give rise to the male gametes. Now, what do you mean by the microsporogenesis? Microsporogenesis is a process by which the microspores, which are also known as pollen grains, are formed from the pollen mother cell through the meiosis, and this process is known as microsporogenesis. In this you have to clearly explain what is pollen mother cell, how the pollen mother cells undergoes meiosis, how the linear tetrad, microspore tetrad, you have to explain and draw each and every part. Okay. Now what is the end product of the microsporogenesis? The end product of the microsporogenesis are the microspores, which are hundreds or thousands in numbers. Microspores are also known as the pollen grains or the male gametophyte. Now the next question is, why the pollen grains are considered as the fossils? Actually fossils are the ones which can remain within the earth for a long duration of time. Similarly, the pollen grains are having the outer layer known as the exine made up of the sporopollenin. The sporopollenin is a material, or you can say is a chemical which is made up of resistant materials which can withstand high temperatures, acids, alkali, etc. So you have to mention this one. Now draw the structure of a male gametophile. Male gameto means your pollen grains. There are the 2 stages of the pollen grains. One is your 2-cell stage, next is your 3-cell stage. 2-cell stage is the one in which you have to mention the one bigger vegetative cell and the smaller towards the south pole, that is the generative cell. ठीक है, तो उसमें आपको एक्साइन बताना है, इंटाइन बताना है, आपको बताना है कि जनरेटिव सेल का क्या रोल है, वेजिटेटिव क्या, प्रॉपर लेबलिंग्स होनी चाहिए. उसमें आपको जर्म पोर भी मेंशन करना है बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द जर्मिनेशन ऑफ द पोलन ट्यूब. 3-cell स्टेज में आपको क्या दिखाना है, बेसिक बाकी प्रॉपर्टीज़, बाकी ड्राइंग जो सेम होगी, बस आपको जो नीचे वाली जनरेटिव सेल थी उसके बीच में एक सेल वॉल बनानी है और 2 छोटे छोटे सेल्स बनाने हैं. तो दिस इज द 3rd cell stage. I hope I have given you a proper description of how to write the answers. Now moving to the main topic of the lecture 2. Now first topic of today's lecture is, what is female reproductive unit?
Female reproductive unit is that part of the flower which is providing you the female gamete. Actually, it is known as your pistils or carpels or gynoecium. These are the names of the female reproductive unit of a flower. Actually, each gynoecium you can say comprises of the 3 parts which can be labeled like this. This is the single pistil or carpel. In this there are the 3 distinct parts, this part and this part. The topmost part, which is having a flat cushion like structure, is known as your stigma. The second part, which is connecting this stigma to this basal swollen part, it is known as your style. Not the style you show, but the style which connects the stigma and the ovary. Okay. Now the basal swollen portion is known as ovary. Within the ovaries are present your ovules. These are your ovules. And in each ovule, the female eggs are present, which are also known as the female gametes. So, first of all, I have explained to you the 3 distinct parts of the gynoecium. Now, the function of each and every part. The stigma, this is the topmost part of the carpel or gynoecium. The function of it is to collect or to receive the pollen grains which are arriving through the pollination. पॉलिनेशन क्या है? वो प्रोसेस जिसकी वजह से जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं कहाँ से? एंथर से स्टिग्मा पे. तो ये वही स्टिग्मा है, ये वही पार्ट है आपका जहाँ पे आपके पॉलन ग्रेन्स आके रिसाइड करते हैं या कह सकते हैं रिसीव होते हैं. अब पॉलन ग्रेन्स रिसीव हो चुके हैं. रिसीव होने के बाद अब इनका क्या होगा? ये जर्मिनेट करेंगे. तो जर्मिनेट कैसे करेंगे? सपोज करो ये आपका एक पॉलन ग्रेन है. लेट मी एक्सप्लेन यू लाइक दिस. ये आपका एक पॉलन ग्रेन है, ठीक है. पॉलन ग्रेन आया, पहले ये चेक होगा कि ये पॉलन ग्रेन जो है जर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा, डिपेंडिंग अपॉन द स्पीशीज़ वो सेम है कि नहीं है. अगर इसे जर्मिनेट करना होगा तो ये क्या करेगा? जो जर्म पोर है वहाँ से पहले एक छोटी सी ट्यूब लाएगा, फिर धीरे धीरे ये ट्यूब क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है, ठीक है. तो स्टिग्मा का रोल समझ में आ गया आप लोगों को? नो. अब स्टाइल का क्या फंक्शन है? जो स्टाइल है वो किसको कनेक्ट कर रहा है? स्टिग्मा से ओवरी को. तो ये स्टाइल वो एरिया प्रोवाइड करता है या वो एक पाथ प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आपकी जो ये जर्मिनेटिंग पॉलन ट्यूब है वो यहाँ से ट्रेवल करते करते कहाँ रीच कर जाए? आपके ओव्यूल्स में कर जाए. दैट इज़ द फंक्शन ऑफ योर स्टाइल. नाउ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द ओवरी? ओवरी इज़ द बेसल पार्ट विच comprises of the large number of ovules. Ovules are also known as megasporangium. These ovules are अटैच्ड थ्रू द प्लेसेंटा. सो व्हाट इज प्लेसेंटा? एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो ओव्यूल्स को कनेक्ट करके रखता है विद इन द ओवरी. दिस इज अ बेसिक पार्ट ऑफ द gynoecium. नाउ मूविंग टू द सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स. देयर आर द डिफरेंट टर्म्स विच आर यूज्ड. द फर्स्ट टर्म दैट इज नोन एज मोनोकार्पेलरी. मोनोकार्पेलरी. सेकेंड इज योर मल्टीकार्पेलरी. Third is your syncarpus, and fourth term is known as apocarpus. So starting with the first one, monocarpellary. Mono means one, carpellary means carpel. When the plant is bearing only a single carpel or a single pistil within the whole complete flower, then it is known as monocarpellary flower. Okay. Now the next term, that is multi. Multi means many. When the number of carpels are more than 2. When the flower is bearing more than 2 carpels, then it is known as multicarpellary. The examples of multicarpellary is, you have seen I think hibiscus, जिसे हम चाइना रोज़ भी कहते हैं. उसमें आपका क्या होता है? मल्टी कार्पेलरी होता है और बहुत ही एलोंगेटेड और एक्सपोज्ड होता है जिसे आप इजीली
देख सकते हैं। सेम केस रोज़ा इंडिका, ये सारे वो कॉमन एग्जांपल्स हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो फ्लावर्स हैं वो आपके मल्टी कार्पेलरी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है सिन। द वर्ड सिन मीन्स फ्यूज्ड, व्हेन दी कार्पल्स आर फ्यूज्ड। फ्यूज्ड इन द सेंस मीन्स उनके स्टिग्मा अलग अलग हैं, सॉरी उनके ये स्टिग्मास अलग अलग हैं, लेकिन वो नीचे आके सब कनेक्ट हो रहे हैं, मतलब वो इस तरह से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, यहाँ पे आके वो फ्यूज हो जाते हैं। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम सिन कार्पस कंडीशन बोलते हैं। लेकिन अगर वो एपो मीन्स दे आर फ्री, मतलब जो आपका कार्पल है, एक तो आपका ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया, तीसरा ये हो गया, तीनों अलग अलग हैं, किसी से ज्वाइन नहीं है, कहीं ज्वाइन नहीं है, बिल्कुल फ्री हैं, then the word is apocarpus. I think it is clear to you. Any doubt? No? Now moving to the next point. Now let's start to the next point, that is the structure of megasporangium. What is megasporangium? Megasporangium means ovule. Means we are dealing with the topic that is the structure of ovule. What are ovules? Ovules are the structures which are present within the ovary. These are structures which are having the egg cells. Egg cells are the ones which are known as the male gametes. Sorry, female gametes. Okay. Now the ovule, I am going to start and explain the structure of the ovule. There are different types of ovule depending upon the degree of angle of rotation of funicle. ठीक है, funicle का क्या है, माइक्रोपाइल क्या है और हाइलम क्या है, इन तीनों की पोजीशंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स के ओव्यूल्स हैं बस। लेकिन जो आपके सिलेबस में मेंशन है दैट इज़ योर एनाट्रोपस ओव्यूल। तो मैं आपको जो स्ट्रक्चर समझाऊंगी वो आपको मैं एनाट्रोपस ओव्यूल की ही समझाऊंगी। ओके, पॉज कर दो। Now this is the basic structure of your megasporangium or ovule. I have drawn this type of ovule is known as anatropous ovule. Anatropous means which is rotated by an angle of what 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री का वेरिएशन होता है इसमें। अब इसमें मैं आपकी इसकी लेबलिंग्स आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। सबसे पहले जो ओव्यूल है वो ओवरी से अटैच्ड होता है एक स्टॉक से जिसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल। सो जो आपका ओव्यूल है अटैच्ड है आपके ओवरी से बाय द स्ट्रक्चर नोन एज द फ्यूनिकल। तो ये फ्यूनिकल वो स्टॉक है जिसके थ्रू जो आपका ओव्यूल है वो आपके ओवरी से अटैच्ड होता है। नाउ मूविंग, अब जो आपके पॉइंट है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है फ्यूनिकल का और आपके किसका, जो फ्यूनिकल है और आपका ओव्यूल का जो कॉमन पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं हाइलम। सो ये जो कॉमन पॉइंट है ये आके यहाँ पे ऐसे कॉमन पॉइंट बन जाता है और उसको हम क्या बोलते हैं, हाइलम। ये बन गया आपका हाइलम। उसके बाद आपको ये दो लेयर्स दिख रही हैं, एक ये वाली जो है, ये वाली, इसे हम बोलते हैं आउटर इंटेगुमेंट। ओके, इसके अंदर ये जो आपकी दिस वन विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीन शेड, जिसे मैं ग्रीन डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये वाली जो है इसको हम बोलते हैं इनर इंटेगुमेंट। ओके, इनर इंटेगुमेंट। उसके बाद ये वाला जो एंड होता है इसको हम चेलेजल एंड बोलते हैं, चेलेजल एंड। और वो एंड जहाँ पे आपके आउटर इंटेगुमेंट्स ओव्यूल को कवर नहीं करते हैं, जहाँ पे एक स्मॉल ओपनिंग होती है, इस एंड को हम बोलते हैं आपका माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड
के साइड जो आपकी सेल्स होती हैं, ये वाली जो सेल्स होती हैं, इनकी नेमिंग डिफ़र करती है, वो आपको मैं बताने जा रही हूँ। जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो सेल्स होती हैं, जो आपको 3 सेल्स दिख रही हैं, इन 3 सेल्स में से जो ये 2 हैं, ठीक है, 2 ये जो ये वाली जो है, एक ये और एक ये, इन दोनों को हम कहते हैं व्हाट इज नोन एज, दे आर नोन एज सिनर्जिड्स। ये सिनर्जिड्स में आपने देख रहे होंगे, यहाँ पे ऐसे आपको ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रही हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम कहते क्या हैं? पहली बात तो इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का एक नाम है जिसे हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। ये फिलीफॉर्म एपरेटस का काम क्या है? ये फिलीफॉर्म एपरेटस जो आपकी पोलन ट्यूब जर्मिनेट करके आ रही है, पहली बात तो एंटर कहाँ से करती है? वो एंटर करती है आपके माइक्रोपाइल से। माइक्रोपाइल से एंटर कर गई, लेकिन उसे कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे मेरी एग सेल है, कहाँ से मुझे ओव्यूल के अंदर एंटर करना है? तो उसे जो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय द फिलीफॉर्म एपरेटस। ये फिलीफॉर्म एपरेटस उसे डायरेक्शन कहते हैं, उसे रास्ता दिखाते हैं कि पोलन ट्यूब आप कहीं मत जाओ, अब हमारे पीछे पीछे आओ, हम आपको ओव्यूल के अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर करा देंगे। ओके, नाउ इसी के ऊपर आपको ये वाली सिंगल सेल दिख रही है, ये वाली सेल, ये है आपकी मेन सेल, जिसको हम कौन सी सेल बोलते हैं? एग सेल बोलते हैं। तो दिस इज़ द मेन, जिसकी हम अब तक जिसकी हमें तलाश थी वो हमें दिख चुकी है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एग सेल। ठीक है, एग सेल के आप ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पे ये सेल तो मैंने एक ही ड्रॉ की है, लेकिन न्यूक्लियाई 2 बनाई है। इसको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। व्हाट वी कॉल दैम? They are known as polar nuclei। एंड आपको टॉप में ये जो है चेलेजल एंड की तरफ 3 सेल्स दिख रही हैं। इन तीनों सेल्स को हम क्या कहते हैं? एंटीपोडाल्स। These 3 are known as antipodals। I think each and every labeling is clear to you. This is a basic labeling. I am repeating you the main functions of the main parts. First of all, you have to mention the 2 outer and inner integument. These are the linings which are protecting the ovules. Now inner to the move, जब हम inner move करते हैं तो हमें एक ये बेसिक, ये elongated सा cylindrical सा structure सेंटर में दिख रहा है। ये पूरा जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसे हम बोलते हैं एम्ब्रायो सैक, विच इज़ नोन एज द फीमेल गैमेटोफाइट। ये एम्ब्रायो सैक है। क्या है ये आपका? एम्ब्रायो सैक। मैं इसको ग्रीन से ही लेबल कर रही हूँ, आप देख लीजिएगा। दिस इज़ नोन एज योर एम्ब्रायो सैक। इसे हम फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर फीमेल गैमेट प्रेजेंट होता है आपका। नाउ एम्ब्रियो, अब ये जो आपका एम्ब्रियो सैक है, उसके चारों तरफ ये जितनी भी सेल्स होती हैं विच आर न्यूट्रिटिव इन फंक्शन, जिसमें से कोई भी एक जो आपकी मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करने लग जाती है, इन सेल्स को हम न्यूसेलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूसेलस। इसमें जो इम्पॉर्टेंट लेबलिंग्स आपको याद करनी है, जो हर एंगल से आपको पता होनी चाहिए, न्यूसेलस क्या होती है आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए चेलेजल एंड क्या है, आपको पता होना चाहिए माइक्रोपाइलर एंड क्या है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि हाइलम क्या होती है। ठीक है, ये जो आपके इनर एंड आउटर इंटेग्यूमेंट्स हैं आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको एम्ब्रियो सैक की ईच एंड एवरी लेबलिंग्स पता होना चाहिए। अगर आपको एम्ब्रियो सैक की ईच एंड एवरी लेबलिंग नहीं पता, यू आर गोइंग टू deduct, or you can say you are going to lose the 2 or 3 marks which is very easy to score। तो प्लीज़ ये लेबलिंग्स अच्छे से कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और एक और चीज़, ये वो डायग्राम है जो बिना प्रैक्टिस के आपसे नहीं बनेगा, तो प्लीज़ डू अ प्रैक्टिस ऑफ मैक्सिमम टाइम्स सो दैट आपको ईच एंड एवरी लेबलिंग्स, प्रॉपर डायग्रामेटिक स्केच अच्छे से लर्न हो जाए बाय हार्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। So now the next topic is your megasporogenesis. The word can be divided into the 2 parts, megasporo and genesis. Megasporo means megaspore and genesis means formation. तो हम megasporogenesis को कैसे define कर सकते हैं? The process by which
the megaspores are formed from the megaspore mother cell by meiosis, then this process is known as the megasporogenesis. अब होता क्या है, अभी आपको मैंने बताया था कि ओव्यूल था, ओव्यूल में आपका बीच में एकदम ही सेंट्रली प्लेस आपका एम्ब्रायो सैक था। एम्ब्रायो सैक में क्या होता है, जो आपकी माइक्रोपाइलर एंड होती है उसके बाहर, ठीक है, कह सकते हैं कि एम्ब्रायो सैक के नीचे माइक्रोपाइलर साइड पे आपकी कुछ डेंस साइटोप्लाज्म वाली प्रोमिनेंट न्यूक्लियस वाली सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम न्यूक्लियस सेल्स बोलते हैं। ये वाली न्यूक्लियस सेल्स के पास कैपेबिलिटी होती है कि वो बिहेव करें एक किसकी तरह, मेगास्पोर मदर्स की सेल, जिसे हम MMC बोलते हैं। व्हाट इज MMC? दैट इज मेगास्पोर मदर सेल। ये जो मेगास्पोर मदर सेल होती हैं, इसकी जो प्लॉइडी होती है दैट इज़ 2n, और 2n वाली प्लॉइडी को हम डिप्लॉइड कंडीशन बोलते हैं। तो अगर आप समझ ही सकते हैं, मैंने अगर ये वर्ड इंडिकेट किया, इसका मतलब अगर मुझे 2n से क्या बनाना है, n, क्योंकि मुझे फीमेल गैमेट बनाना है, और फीमेल गैमेटोफाइट क्या है आपका, एम्ब्रायोसैक, मतलब कह सकती हूँ कि मुझे एम्ब्रायोसैक बनाना है, ठीक है, एम्ब्रायोसैक की डिफरेंट सेल्स बनानी है। तो 2n से n कब होगा, जब मैं क्या कराऊंगी, मेयोसिस कराऊंगी। तो यही प्रोसेस है, और इस पूरे प्रोसेस को ही हम मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो स्टार्टिंग विद द वन कि जो आपकी माइक्रोपाइलर एंड पे जो न्यूक्लियस सेल्स हैं, जिसमें आपका डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, प्लस आपके प्रोमिनेंट न्यूक्लियस हैं, उनमें से कोई भी एक सेल पॉलन मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करेगी। उसके बाद वो मियोसिस करेगी। जो मियोसिस होता है वो 2 पार्ट्स में करेगी। सबसे पहले सपोज करो ये आपकी एक मेगास्पोर मदर सेल है, ये आपकी MMC है। इस MMC ने पहले क्या करेगी, फर्स्ट ट्रांसवर्सली डिवाइड करेगी। फर्स्ट ट्रांसवर्स डिवाइड का मतलब है ये ऐसी स्ट्रक्चर फॉर्म करेगी जिसे हम मेगास्पोर डायड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेगास्पोर डायड। मेगास्पोर डायड बन गया। अब ये फिर से क्या करेगी, ईच एंड एवरी सेल फिर से यहाँ पे ये क्या करेंगी, एक और ट्रांसवर्सली डिवाइड करेंगी, और ये इस तरह से आपके ऐसे 4 सेल्स बना देंगी, जो एक लीनियर फैशन में अपने आप को अरेंज कर देते हैं। इसको हम बोलते हैं मेगास्पोर टेट्राड। देख लीजिए, यहाँ पे हमने बोला था डायड। डायड क्यों बोला था, क्योंकि 2 सेल्स बनी थी। इसे हमने बोला है टेट्रा। टेट्रा मीन्स 4, क्योंकि यहाँ पे 4 सेल्स बन गई हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, मेगास्पोर टेट्राड। इसका दूसरा नाम होता है लीनियर टेट्राड। क्यों, क्योंकि लीनियर फैशन में उन्होंने अपने आप को अरेंज किया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब होता क्या है कि इन चारों में से जो 3 सेल हैं, ये 3 सेल क्या कर जाएंगी, डीजेनरेट कर जाएंगी। व्हाट डू यू मीन बाय डीजेनरेट, मतलब अपने फंक्शंस को लॉस्ट कर देंगी, कोई फंक्शन नहीं रहेगा, अपना सारा काम खत्म कर देंगी। दैट इज नोन एज डीजेनरेट। और जो सिंगल वाली ये है, ये क्या करेगी, एम्ब्रियोसैक की फॉर्मेशन कराएगी। क्या कराएगी, एम्ब्रियोसैक की फॉर्मेशन। तो अब इसके लिए भी एक नाम गिवन है। इस टाइप की डेवलपमेंट को एक नाम दिया गया था, और इस डेवलपमेंट को हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। There is a word known as the monosporic development. Now, what is monosporic? Mono means one, sporic means spore. जब एम्ब्रियोसैक की डेवलपमेंट सिर्फ एक ही मेगास्पोर से हो, उस टाइप के डेवलपमेंट को हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसैक। अब आप पूछेंगे क्वेश्चन कि यहाँ तो एक ही सेल है, लेकिन हमने देखा था एम्ब्रियोसैक में कितनी सेल बनी थी आपकी, 7 सेल्स बनी थी। तो वो 7 सेल्स कैसे बनेंगी? तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं अभी आपको समझाने जा रही हूँ, 2 मिनट वेट कीजिए। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? मोनो मीन्स 1, स्पोरिक मीन्स स्पोर्स। जब 4 में से 3 तो डीजेनरेट कर जाए और जो सिंगल बच्चा है वो पूरा का पूरा एम्ब्रियोसैक की फॉर्मेशन कर दे, तो इस टाइप के डेवलपमेंट को मोनोस्पोरिक। मैं बार बार स्ट्रेस इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि ये 1 या 2 मार्क्स से क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम में। व्हाट डू यू मीन बाय द मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट? इसीलिए एक बार अच्छे से फिर से देख लीजिए। नाउ अब मैं जो आपको समझाने जा रही हूँ कि किस तरह से इस सिंगल स्पोर से, एक सिंगल मेगास्पोर से आपका एम्ब्रियोसैक फॉर्म होता है। नाउ
Now after the topic megasporogenesis, we are going to study the megagametogenesis. The word megagametogenesis means the formation of the megagamete, and what is megagamete? Known as the embryo sac. तो हम embryo sac की development पढ़ेंगे. अभी आपने देखा कि मेरे पास एक मेगास्पोर मदर सेल थी, मेरे पास एक स्पोर था, ठीक है, जिसे हम मेगास्पोर बोलते हैं. अब ये मेगास्पोर क्या करेगा? सक्सेसिवली क्या करेगा? सक्सेसिवली 3 माइटोटिक डिविजन्स करेगा. व्हाट? सक्सेसिवली 3 माइटोटिक डिविजन्स करेगा. अब आपको पता है माइटोटिक डिविजन्स है, इसका मतलब क्या होगा? प्लॉइडी विल बी सेम. और प्लॉइडी यहाँ पे कितनी होगी आपकी? n होगी, ठीक है. अब देखिए ये जब क्या करेगा? फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन करेगा तो ये 2 सेल बनेंगी, ठीक है. ये फर्स्ट माइटोटिक डिविजन्स हैं. अब ये फिर से सेकंड माइटोटिक डिवीजन करेगा तो इससे 2, इससे 2, 1 2 3 4 बन गई. ये सेकंड माइटोटिक डिवीजन हो गई. अब क्या बन गई आपकी? थर्ड माइटोटिक डिवीजन. थर्ड माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है आपका? ये देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बन गए. तो इस तरह 1 से हम कितनी बना देते हैं? 8. अब इन 8 का क्या होता है? रीअरेंजमेंट होता है. रीअरेंजमेंट का मतलब जैसे आप लोग बैठे क्लास में, फर्स्ट डे क्लास में आए तो अपने हिसाब से कहीं भी बैठ गए. अब टीचर ने देखा कि आपने अपने फ्रेंड सर्कल के अकॉर्डिंग अपना सेटिंग प्लान कर रहा है. नेक्स्ट डे आपकी क्लास टीचर क्या करती है? आफ्टर द टेकिंग अटेंडेंस वो आपसे कहती है नाउ हम आप थोड़ा रीशफलिंग कर देते हैं. रीशफलिंग का मतलब आपका हम क्लास की रीअरेंजमेंट करेंगे, हम आपका सेटिंग प्लान चेंज करेंगे और जो सेटिंग प्लान होगा दैट विल बी फिक्स्ड, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं करेंगे. तो वहाँ पे रीअरेंजमेंट मैम क्या करती हैं? आपको आपके फ्रेंड सर्कल से हटा के दूसरे ग्रुप में अटैच कर देती हैं. रीज़न इज़ कि अननोन ग्रुप होगा तो आप ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस नहीं करेंगे. साथ के साथ आपका जब एनवायरनमेंट चेंज होता है तो जो फोकस होता है टुवर्ड्स स्टडीज़ वो इंक्रीज़ होता है. तो जो बेसिक एम होता है रीअरेंजमेंट का क्लास का वो ये होता है. लेकिन यहाँ जो हम सेल्स का रीअरेंजमेंट कर रहे हैं वो एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन के लिए कर रहे हैं. अब होगा क्या? ये आपकी जो 8 सेल्स हैं, पहले जब ये सेल बनती हैं तो ये इस तरह से होती हैं, ठीक है. ये एम्ब्रियो सैक है, ये आपकी सेल थी. तो ये 8 सेल्स कैसे होती हैं? एक्चुअली ये 8 सेल्स नहीं होती हैं, ये 8 न्यूक्लियस होती हैं. ये क्या होते हैं? 8 न्यूक्लियस होते हैं और 7 सेल्ड होता है. इसीलिए हम अपने एम्ब्रायो सैक को 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर भी कहते हैं. वो क्यों? अब देख लीजिए एक बार. ये मैंने एम्ब्रियो सैक ड्रॉ कर दिया, ठीक है. यहाँ पे आपके ये 3 सेल्स आ गए. ये जो एंड होगा वो आपका कौन सा एंड होगा? ये है आपका माइक्रोपाइलर एंड है, ठीक है. उसके जस्ट अपोजिट जो होगा वो आपका कौन सा एंड होगा? वो आपका चेलेजल एंड होगा. 3 सेल्स माइक्रोपाइलर एंड पे, अब 3 ही कहाँ पे आ जाएंगी? चेलेजल एंड पे. टोटल कितनी सेल्स हो गई? काउंट कीजिए. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 सेल्स हो गई. अब क्या होता है? ये वाले जो 2 न्यूक्लियस हैं वो अलग अलग ना होके एक ही सिंगल सेल में इस फॉर्म में हो जाते हैं. तो देखने में तो आपको लग रहा है 8 सेल्स है, लेकिन एक्चुअली 8 सेल्स नहीं होती. जो सेंटर वाली सेल होती है, जो सबसे बड़ी सेल है, ये उसका न्यूक्लियाई और ये पूरा उसका साइटोप्लाज्म होता है. ये डिवाइड नहीं होती है, सिंगल होती है, और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, या सेकेंडरी न्यूक्लियस भी बोलते हैं, या तीसरा नाम इसे हम सेंट्रल सेल भी बोलते हैं. तो देख लीजिए फिर से. अब यहाँ पे ये जो आपके हैं माइक्रोपाइलर एंड में, जिसमें ये आपके ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, इनका जो नाम दिया जाता है इन्हें हम कहते हैं सिनर्जेट्स. तो ये दोनों आपके सिनर्जेट्स हो गई. सिनर्जेट्स कितनी हैं? 2 इन नंबर, ठीक है. सिनर्जेट्स के ऊपर ये वाली जो सेल हो गई इसे हम बोलते हैं एग सेल, ठीक है. और माइक्रोपाइलर एंड पे एग सेल और सिनर्जेट्स को एक साथ कंबाइन करके हम एक वर्ड यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं एग एपरेटस. तो
एग apparatus समझ में आ गया. When the egg cells and synergids are taken together, there is a term known as the egg apparatus. Now ये पूरा हो गया. 3 सेल आपकी ये हो गई, 2 ये हो गई, 1 ये हो गई. अब देखिए चेलेजल एंड पे आपकी 3 सेल्स हैं, 1 2 3, जिनको हम एंटीपोडाल्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एंटीपोडाल्स. तो कितनी हो गई? 3. तो 3 और 3 अब तक ये टोटल कितने हो चुके हैं? 6 हो चुके हैं. अब क्या है, ये न्यूक्लियाई तो 2 है लेकिन सेल 1 है, तो ये कितनी हो गई? सेंट्रल सेल 1. तो टोटल सेल कितनी हो गई? 7. लेकिन न्यूक्लियस कितने हो गए? 8. इसीलिए हम एम्ब्रियो को कहते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, दैट इज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर. तो ये एक और नया क्वेश्चन बन गया आपका. एक्सप्लेन व्हाई द फीमेल गैमेटोफाइट is known as 7-celled 8 nucleated structure. और जब ये क्वेश्चन आएगा आपको तो ये पूरे डेवलपमेंट और ये एक्सप्लेनेशन आपको शो करना पड़ेगा. आपको दिखाना पड़ेगा कि किस तरह से आपके 7 सेल्स हैं और किस तरह से आपका सिंगल वाला जो है वो 2 न्यूक्लियाई के फॉर्म में, इसलिए न्यूक्लियस तो 8 बन गए लेकिन 7 सेल रह गए. आई थिंक आपको आज का पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा. तो नाउ स्टॉपिंग द लेक्चर ओवर हियर. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट.